Okay, so joining us live from Mumbai is Naresh Pakhre. He is a local member of the Shiv Sena, someone who in fact was involved in that entire exercise where he decided that it was in his hands to ensure that morality is maintained. Swami Chakrapani, president of the Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha, also is with us from Delhi. T.R. Kakkar, former police commissioner of Delhi with us. Shazia Ilmi, political activist. And Abha Singh, senior advocate and social activist, along with Ruben Mascarenhas, who is a coordinator for the Zero Tolerance campaign. He is live with us from Mumbai. And I want to start with asking naturally नरेश पाखरे. नरेश जी, आपको किसने ये बताया कि आपको हक है कि आप जाएं उल्लासनगर में जाकर के लड़के लड़की जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक साथ खड़े हुए हैं, उनको आप थप्पड़ मारे, उनसे पूछे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपको किसने ये हक दे दिया? मैम, हक हमारे इधर हर आदमी ऊपर से जो ब्रिज पे जा रहा है, जो ऊपर से ब्रिज पे आदमी जा रहा है, वो कोई जा नहीं पा रहा था, मुड्ढे नीचे डाल के जा रहा था। क्यों ऐसा क्यों है? बड़े बच्चे नहीं, ऐसा क्या दिख रहा है आपको ब्रिज पे कि आप कह रहे हैं आपको सर झुका के जाना पड़ रहा है? आप ये बताएं हमें। मैम, पूरी अश्लील हरकतें हो रही है वहाँ पे, इतनी गंदी हरकतें कि मैं आपको ऐसा बता नहीं सकता वो हरकतें। पर ये तो ओपन पब्लिक प्लेस है, अगर लड़के लड़की हाथ पकड़ के भी जा रहे हैं, अगर कपल्स हैं, अगर ऑब्वियस है कि कपल्स है, इसमें आप नहीं, आप ये बताइए कि आपको ये हक किसने दिया है? आपको ये किसने बताया कि समाज की मोरालिटी और डिसेंसी के रक्षक आप अकेले अलोन हैं? मैं अकेला या हाथ पकड़ पे चलने का विरोध नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे अश्लील हरकतें की बात कर रहा हूँ मैम मैं। अच्छा, अश्लील हरकतें जो आप डिफाइन करते हैं कि अश्लील है, जो आपको अश्लीलता रखती है. Let's start by asking Ruben Mascarenhas to respond to that. Vulgarity in public, so their hand was forced apparently, quite literally at that, and there's nothing wrong in slapping around a few people when it's morality that you're enforcing, Ruben. No, actually, the argument itself is stupid. To begin with, people like Mr. Ramesh have become moral custodians of the law. Whatever their actions and activities are go absolutely unpunished by the police, and in some way or the other it emboldens them, and they themselves feel that, oh, we are doing the right thing irrespective of whether or not we are breaking the law or not. So this is not the first time this is happening. This is repeatedly happening. I'm really appalled at the situation where you actually release the footage. The footage shows Mr. Ramesh directly thrashing both those the poor couple on that skywalk. And as regards public obscenity, you've mentioned section 294, there's section 110 of the Bombay Police Act which deals with indecency. There are case laws. Yes, exactly. So if the police has to take action, Ruben, that is exactly the question we need to put to Mr. Pakhre. Mr. Pakhre, बात तो ये है कि ये एक पुलिस एक्ट है, मतलब there is an act against this. अगर आपको लगता है किसी तरीके की obscenity हो रही है वहाँ पे, तो ये आपका जॉब है कि पुलिस का जॉब है कि उस पे एक्ट करें? मैम, हम पुलिस को बता चुके हैं, बार बार हम लोग बोल रहे हैं। नहीं, अगर आप बता चुके हैं और पुलिस को नहीं लगता है कि इसमें कुछ गलत हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ गलत नहीं हो रहा है। रोक लगाओ, अगर कुछ क्राइम हो रहा है तो पुलिस तो कुछ ना कुछ करेगी। हेलो हेलो हाँ, तो मिस्टर पाखरे, अगर आपने पुलिस को बताया और पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो आप पुलिस बन जाएंगे, कल को आप सजा भी देंगे, आप कोर्ट भी बन जाएंगे। आपने डिसाइड किया कि इनको थप्पड़ मारने की जरूरत है तो आपने जाके थप्पड़ मार दिया। पुलिस ने एक्ट करेगी तो आप करेंगे, आप ये कह रहे हैं? पाखरे जी, आपको सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Okay, we'll just try to re-establish that connection with Naresh Pakhre, but let's go across to T.R. Kakkar now and, get the point of view of the police. In a situation like this, what happens, Mr. Kakkar? Because what we are being told is that the police is not acting against this open indecency, which is why we have to take matters into our own hands. I'll just take 2 minutes to explain. Look, as far as the indecent behavior is concerned, it is defined under section 294 of the Indian Penal Code, and the Bombay Police Act section 110 or something must be also giving similar definition. What is indecent is known to the police, and if the police is not taking action, obviously it is not indecent, the behavior is not. Now these self-appointed goons who are trying to do the moral policing must be immediately taken into custody by the Bombay police for they are committing 3-4 crimes. They are doing wrongful restraint of the couples, wrongful confinement. They are also
sort of having this sort of assault, etc. If the Bombay police is not taking action, obviously there is some fear of somebody in the authority, and that is why this action is not being taken. I see there are ample laws of the High Court. High courts have given decision that the police will not interfere. Well, absolutely. When the police in Ulhasnagar, in fact, must take action against you. Mr. Pakre, बात बहुत साफ है और फॉर्मर पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने बर्ताव किया है, क्राइम तो आपने कमिट किया है, आपको मैन हैंडलिंग, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, असॉल्ट के लिए आपको पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। तीन चार क्राइम कमिट किए इन्होंने। All right, so Mr. Pakre, it seems right now is not able to hear us very well, but I want to get a view from Shazia Elmi and Abha Singh as well. Shazia Elmi, don't you think it's high time that people like this should be simply put behind bars, because we need to set an example that this kind of loony behavior will not be tolerated. Someone thinks, oh, this is vulgarity, let's go and slap these people around. They can't get away with this anymore. Absolutely, Padmaja, I think it's horrifying. And what is worse is the sense of sanctimony, the moral superiority that this man seems to assume. And he was saying that nazare chupti hain. When we see this, hamari nazare chupti hain. So I think there is something very wrong with this argument. And you know, to presume that everybody must act and cater and subscribe to your definition of what is proper, and to beat up people on that basis is absolutely scary. I mean, after all, we live in a country where there is rule of law. There are problems with the system, but that does not mean some moral custodians will take it upon themselves and start beating up people. This gives them more political dividends, please understand. But what I'm shocked is at the behavior of people at large who are supporting them. See, that's they should be, if there has to be vigilantism, it has to be for people who molest girls, who throw rubbish, who break laws, not a couple. And I can but Shazia, you know, and I must ask you this. Shazia, because through the day we've been talking to activists about this incident, and one voice that has come through very strongly is that the political atmosphere currently is such that these kind of lunatic fringe elements think that they can get away with it. What do you think about that? I think so. I think there has to be some kind of clarity and transparency as to what our political leaders feel about it. If suddenly the political class and people who are dear to this political class and these sycophants feel that they can get away, that there is something happening which is changing the social fabric of this society, and they feel in polarizing and creating this kind of bhasha, this kind of culture, they can get, and they think they have the right to tell others how they can or they are allowed to behave or not in public. In fact, I believe that Naresh Pakre is back with us. Naresh Pakre जी, हम अभी एक फॉर्मर पुलिस कमिश्नर से बात कर रहे थे, मिस्टर टीआर कक्कड़, फॉर्मर दिल्ली पुलिस कमिश्नर, और उन्होंने भी, और जो लॉयर्स है हमारे साथ, उन्होंने भी बताया कि एक्चुअली जहां तक लॉ ब्रेक करने की बात है वो तो आपने की है, आपको जेल में क्यों ना डाला जाए। आप जो हैं इन लोगों के पास जाते हैं, इनके साथ मिसबिहेव करते हैं, उनको थप्पड़ मारते हैं, असॉल्ट, इनलीगल कन्फाइनमेंट, मैन हैंडलिंग, इन सब के लिए आपको जेल में क्यों ना डाला जाए। हेलो मैम, नहीं सुनाई नहीं दी, आप क्या बोले मैम? हाँ, नरेश पाखरे जी, जिस तरीके से आपने लोगों के साथ बर्ताव किया है, उन पर हाथ उठाया है, क्या आपको जेल में नहीं डालना चाहिए? हाँ मैम, अगर मैं समाज के विरोध में कर रहा हूँ तो मुझे सही में जेल में डालो। आप वहाँ पे बैठ के ये चीज बोल रहे हो, आप यहाँ पे स्काईवॉक पे आके एक बार नहीं, आप चाहे तो समाज के विरोध में करें, चाहे आप अपने माइंड में सोचते हैं आप समाज के हित में कर रहे हैं, बात तो ये है कि आप हाथ उठा रहे हैं, एंड नोबडी हैज द राइट टू हिट अनदर ह्यूमन बीइंग। यू आर वायलेटिंग द लॉ। मतलब वो कोई नहीं, पब्लिक प्लेस में कोई भी अशिष्ट, इस तरह से अशिष्ट की वो बयान नहीं कर सकता, ऐसी हरकतें करे तो मुझे तो कोई भी नहीं देख सकता ना। यहाँ पे अगर मेरी बहन रही, सुनो मैम, यहाँ पे अगर मेरी बहन रही, मेरी बेटी रही, और मैं ये देखता रहेगा, या कोई भी जो सामने बेटा है उनकी आप जाके पुलिस को बताएंगे नरेश पाखरे जी, इसीलिए हमारे देश में पुलिस है और कोर्ट्स हैं। नहीं मैम, हम पुलिस को बताया, हम पुलिस को एक चीज बताया, एक बार नहीं। तो अगर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, यानी कि उन्हें कोई इलीगैलिटी नहीं मिली, आपकी कंप्लेंट के मुताबिक उनको कोई इलीगैलिटी नहीं मिली, आप थोड़ी ना डिसाइड करेंगे क्या इलीगल है क्या नहीं है, पुलिस डिसाइड करेगी।
नहीं, डिसाइड तो वही करेगी ना, लेकिन जो हमारे आंखों के सामने आज हमारे बच्चे बोलते पापा ये क्या चालू है, मम्मी ये क्या चालू है, हम क्या जवाब देंगे उनको ये चीज का? आप उनको ये जवाब देंगे कि पुलिस ने, आपने कंप्लेंट की और पुलिस को इसमें कुछ गलत नहीं लगा, आपको थोड़ा ना हक देगा। ऑल्सो पाखरे जी, आप कह रहे हैं आप हमारे बच्चों को क्या जवाब देंगे? एक मिनट, आप क्या अपने बच्चों को ये समझाएंगे कि किसी चीज से इफ यू डिसएग्री, किसी चीज से आपको अगर तकलीफ हो रही तो जाके थप्पड़ मार दो, किसी को बीट अप कर दो? आप ये सीख दे रहे हैं अपने बच्चों को? नहीं नहीं, ये तो ऐसा सीख देना चाहिए, बेटा तू यही कर जाके आगे, मेरा तेरे को हर तरफ से समर्थन है, ये सीख मैं दे दूं बच्चों को? नहीं, आपको हर तरफ से समर्थन नहीं है आपके इस एक्शन के लिए। आई वांट टू गेट इन शाजिया इल्मी एंड आभा सिंह बोथ ऑन द, इनफैक्ट आभा सिंह फर्स्ट, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू ऑल दिस लॉजिक व्हिच मिस्टर पाखरे हैज बीन प्रेजेंटिंग? आप इनको क्या बोलना चाहेंगे पाखरे जी को? क्यों कह रहे हैं कि हम उनसे कह रहे हैं कि ये चीज उन्होंने जो की है वो गलत है, लॉ क्या कहती है आभा सिंह? देखिए ऐसा है मिस्टर पाटिल सरासर गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसमें होना चाहिए कि इनका काम केवल पुलिस को बताना है और पुलिस का काम है एक्शन लेना। ये अपने हाथ में कानून को नहीं ले सकते हैं। अगर ये ले रहे हैं तो इनको कहीं ना कहीं से इनको वो शय मिली हुई है कि आप करिए जो करना है, आपके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। दिस इज टोटली illegal and he must be stopped. He can even be preventive arrest him under the preventive sections of law. If he thinks that he is the only one who is the custodian of all morality in this country and the law does not permit it, he can be taken into preventive custody. That's right, and Abha Singh, with wrongful confinement, wrongful Abha Singh, you also wanted to make a point. Let's Mr. Pakhre hear your the issue here is see, Mr. I would like to say that this is a clear case of rioting. There are a group of people who are trying to thrash up these people. They should have been arrested under 147 of the IPC, that is rioting. And since you can see in the footage that there are more than 5 people, so every member of this assembly should be punished under rioting. And what is worrying me more, that these youth and nobody has come to lodge an FIR. This shows that these goons are bigger criminals and their terror is so much that nobody has come forward and complain. So this reflects the government also, that the government is unable to maintain law and order. People who are being beaten up openly, there is rioting and no FIR is registered till now. It reflects very badly on the government and the local police. Well, the political stand has to be made clear on this, as Shazia said. But Mr. Pakhre, I'm going to come back to you. आप ये बताइए कि कल को आप कहीं जा रहे हो, किसी और को, कोई भी पासर बाय हो, आपके किसी बिहेवियर से कुछ तकलीफ हो और वो आपको आके थप्पड़ मार दे, तब आप क्या कहेंगे? उसको लग रहा है कि वो बिल्कुल ठीक कर रहा है क्योंकि आपके बिहेवियर से उसको प्रॉब्लम है, तो वो आपको मार सकता है? हेलो, अगर मेरा बिहेवियर गलत है, मैं उस चीज के लिए गलत हूँ, कौन डिसाइड करेगा गलत क्या है? सकते हैं, मार सकता है उस चीज के लिए। अरे गलत है, लॉ कहती है कि आपका बिहेवियर गलत है। नहीं, वहाँ पे पब्लिक प्लेस पे अच्छी हरकत कर रहे हैं, गलत नहीं है क्या? इसमें लॉ नहीं है क्या? देश में कानून है, देश में संविधान है। पाटिल जैसे गुंडों को तो अब तक जेल में होना चाहिए था, ना कि एक चैनल पे बैठे हुए कि इस तरह आप किसी को भी मारे। नहीं मैडम, अगर एक चीज के लिए एक चीज के लिए मैं कर रहा हूँ, अच्छी हरकतें करने को रोक रहा हूँ, आ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटे छोटे बच्चों को इस तरह पब्लिक प्लेस में मारेंगे। पॉलिटिकल इशू मत किया, पॉलिटिकल इशू मत कीजिए मैम। यहाँ पे आपने क्या पुलिस में कंप्लेन करी? आप उसकी कॉपी दिखाइए। इस तरह आप गुंडागर्दी है ना, मेरे पास कंप्लेंट है ना, पुलिस को कंप्लेंट किया है इस चीज के बारे में। नहीं, पॉलिटिकल इशू तो बिल्कुल है, क्योंकि आप इस तरीके से ये हरकत नहीं कर पाते अगर आपके सर पे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ नहीं होता और आपको लगता है कि आप बच के निकल जाएंगे। एंड दैट इज द रियल प्रॉब्लम, इज इट? एंड आई आल्सो वांट टू गेट इन स्वामी चक्रपाणी ऑन दिस इशू। स्वामी चक्रपाणी, आपके भी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इन द रीसेंट पास्ट बहुत सारी चीजें कही हैं अश्लीलता के बारे में, लड़कियों को कैसा कपड़े पहनने चाहिए, कैसे बिहेव करने चाहिए। आप और नरेश पाखरे जैसे लोग ही हैं इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं देश में, जिससे लोगों को लगता है कि अरे मेरे को किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं जाके जो मन में आए उनके साथ बर्ताव कर सकता हूं। आज जो हुआ है महाराष्ट्र में, उल्लासनगर में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो नरेश पाखरे ने किया, क्या आपको लगता है सही है स्वामी चक्रपाणी? देखो ऐसा है कि कोई भी समाज में अश्लीलता फैलाता है, चाहे कोई भी कपल हो, कहीं भी हो, उसके लिए कानून है। तो
तो हमें लगता है कि ऐसे जहां भी अश्लीलता दिखाई दे रहा है, हमें लगता है कि अपराध कर रहे हैं सार्वजनिक स्थानों पे अश्लीलता फैला करके, तो निश्चित रूप से पुलिस को बुलाना चाहिए, पुलिस में शिकायत करनी चाहिए और उनके खिलाफ। लेकिन ये कतई हम इसका समर्थन नहीं कर सकते कि एक अपराध को खत्म करने के लिए दूसरा अपराध कर दिया जाए, थप्पड़ मार दिया जाए, डंडे मार दिया जाए। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि ये भी समाज के हिस्सा है और ये भी अपनी जो अगर जो उनको कुछ करते हैं किसी भी तरीके से हिंसा का, तो समर्थन कोई नहीं करेगा, समझा सकता है उसको। अगर अश्लीलता करता है, अगर पुलिस को नहीं बुला सकता है तो उसको समझा दे कि भाई ये सार्वजनिक स्थान पे है, लेकिन इस तरह से कार्य हमें लगता है नहीं करना चाहिए। लेकिन आप ये भी बताइए कि ये अश्लीलता है, ये कौन डिसाइड करेगा? क्या चीज अश्लीलता है, क्या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? नहीं, देखो ऐसा है, डिसाइड उसके लिए कानून बने हुए, जब पुलिस आती है तो खुद देख लेती है कि अश्लीलता कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो जी नहीं, वो तो खुद ही तय है। तो निश्चित रूप से उसके लिए हमारी पास कानून व्यवस्था है, तो कानून अपना कार्य करती है। लेकिन एक बात और भी मैं देख रहा हूं कि जो हिंदू संगठनें कार्य कर रही है, आप लोग छोटी छोटी विषयों को उठा के जो इंडियन तालिबान का नाम दे देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तालिबान और इन संगठनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये संगठनें कार्य भी करती है, राष्ट्र के लिए कार्य करती है, और ये अपने समाज को हिस्सा मानती है। जो भी कपल है वो हमारे समाज का भी हिस्सा है, हमारे बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई दुश्मन समझ करके वो कार्रवाई नहीं लगा दिए, ये तो छोटी छोटी हरकतें हैं। क्यों आप हिंदू तालिबान बोल रहे हैं? कार्य नहीं है स्वामी जी, निहत्थे लोगों को मारना कोई राष्ट्रीय कार्य नहीं है। थप्पड़ों का कोई समर्थन नहीं कर सकता। थप्पड़ और डंडा। Yes, Ruben, go on. नहीं स्वामी जी, आप बोल रहे हैं हम बात का बतंगड़ बना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप वीडियो को देखिए, ये कितने लेवल्स पे गलत है। I just like to draw your attention to the fact that even when the people there in the video are confronting the girl, they ask the girl to call her parents. What are we trying to show? You don't ask the boy to call his father or his mother and report the case. You are denying the girl her sexual choice. You are denying the girl her own individual liberties. That is the moot point of this. The fact is that people and let's face it, रमेश जी, आप बोल रहे हैं इसका राजनीतिकरण ना कीजिए, इसका पॉलिटिकल इशू मत बनाइए। फैक्ट इज आप एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है। What has that political party done? Has the Shiv Sena actually expelled him? Has the Shiv Sena said that we dissociate from this? This continues time and again. And when Mr. Ramesh speaks about अश्लीलता, when Swami ji speaks about अश्लीलता, Valentine's Day पे हमको पता है मुंबई में क्या होता है। Merely holding hands or merely putting your hand under on somebody's shoulder is not indecency. And I'm very confident enough I speak on behalf of the youth of this country. This is wrong. The police doesn't take action. These people get emboldened. The whole thing continues. This is nothing but cheap political publicity, cheap political stunts. Mr. Pakre. सर आप वहाँ पे बैठ के जो चीज बोल रहे हैं, यहाँ पे आके आप देख के फिर बताओ। आप मुझे धमका रहे हैं? यहाँ पे अगर आप मुझे धमका रहे हैं? सुनो सर मेरे नहीं वहां पे बैठ के नहीं, यहाँ पे आके देख लो एक बार सिचुएशन क्या है यहाँ की। नहीं, सिचुएशन जो भी है मिस्टर पाकरे, सिचुएशन जो भी है, आप अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करने के लिए और कोई तरीका नहीं अपना सकते। आप कह रहे हैं आपने पुलिस कंप्लेंट किया, चलिए आप कह रहे हैं कि पुलिस ने जवाब नहीं दिया, लेकिन आप अपनी तरफ से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से मतलब जाके उनको अपनी बात बता सकते हैं। लेकिन इस तरीके से किसी को मारना पीटना, क्या ये जवाब है? के बाद ही ये करते। हेलो आपने बात की बात क्लिप देखी है, उससे पहले जो चीज होती है हम लोग समझाते। अगर समझ में ही नहीं आती, वो बोलते तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग ने नहीं किया क्या लाइफ में, हम लोग को क्या बोलते हैं, चलो निकलो, इतना ही बुरा लग रहा था, आंखें बंद करके चलो, ये स्टेटमेंट रहता है उनका। The thing is very simple, Mr. Pakre. If you decide someday that somebody's behavior is objectionable to you, that does not give you the right to take whatever action you deem fit against them. It might be wrong in your eyes. To them, it is okay. And if it's legal, if they're not doing anything illegal, you have no business even accosting them, leave alone raising your hand on them. We have to slip into a very short break at this point. And on the other side, Mr. Pakre, just stay on with us, because on the other side, not only will we examine the legal question, but also the question of the political patronage that fringe elements like this one receive, which is why they think they can get away with this kind of an outrage. Quick break, back in 2 minutes.